اذان کے منتظر 29واں روزہ رکھا تھا. بات 2018 کی ہے. سری نگر کی پریس کالونی میں جو بے ہنگم آواز گونجی وہ نہ تو افطاری کا نکارہ تھا اور نہ ہی اذان کی آواز، بلکہ ایک اہل قلم، صاحب ضمیر قلمکار اور دانشور کچھ سمجھ کے ہی ہوا تھا موجے دریا بہے گا. جھوٹے تو شرمندہ نہ ہوئے لیکن سچ کی قیمت ادا ہو گئی. نو عمر، ہونہار، اہل دل، اہل زبان دانشور سید شجاعت بخاری چلے گئے. گولیوں کی بوچھاڑ ہوئی. میرے ٹیچرز فورم سے وابستہ تنویر صاحب، نثار صاحب، حمید صاحب، میرے معزز میڈیا فیڈرٹی سے میرے سب بھائی، مجھے یاد ہے 2006 لگتے ہیں جو سرے سے ہی ہمارے رہبر ہیں، جن کا رہبر ماننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. شجاعت صاحب کے بارے میں، اس کی شہادت کے بارے میں یہ پروگرام یہاں پر جو منعقد ہوا ہے اور منعقد کرنے والے جو ہے ان کو ہم سلام پیش کر رہے ہیں. ہم بھی ان میں تھوڑا شامل ہے، ہم نے بھی تھوڑا کنٹریبیوٹ کیا ہے. لیکن جیسے یہاں پر بڑے بڑے صحافی ہیں اور ٹیچرز فورم کے زعما ہیں اور کچھ سیاسی کارکن بھی ہے، انہوں نے یہاں پر وعدہ کیا، پرومس کیا کہ آج کے بعد ہم اس مشن کو جاری رکھیں گے. یہ صرف سیاسی مشن نہیں ہے، وہ ایک اعلیٰ قدر کی شخصیت تھی. سمجھو ہم جو تھوڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں مختلف شعبوں میں، ہماری رہبری انہوں نے کی ہے، اس لیے یہ مشن جاری اور ساری رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. میں صرف 2 باتیں کروں گا. ایک یہ کہ مجھے فخر ہے کہ میرا تعلق اس گھر سے ہے جس گھر سے شجاعت کا تعلق تھا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ان کا درجہ بلند ہو، اور جس طرح کے وہ انسان تھے، جس طرح کے وہ بھائی تھے، جس طرح کے وہ دوست تھے، اور سب سے بڑی بات جس طرح کے وہ اپنی ماں باپ کے اولاد تھے، بہترین اولاد جو میں سمجھتا ہوں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اے پروردگار میرے اندر بھی ایسی خوبیاں ڈال دے اسی کی نسبت سے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. کے باہر روزے کی حالت میں گولی مار کر شہید کر دیا تھا، تو میں تمام برادری کی طرف سے جو اہل صحافت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں بارہمولہ ضلع سے یا شمالی کشمیر سے، ان کی طرف سے میں اپنے اس بھائی کو، اپنے اس دوست کو، اپنے اس رہبر کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. اور میں اس کے بڑے بھائی بشار بخاری صاحب کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ، آنے والے سالوں میں میں نے اس کے ساتھ پہلے بھی یہ ذکر کی تھی کہ ہم ایک جموں کشمیر میں ایک ایسے تمغے کا آغاز کریں گے جس کا نام ہوگا تمغہ شجاعت بخاری. اور جو نمایاں کارکردگی دکھانے والا کسی بھی شعبے میں، خصوصاً قلمکار، ادیب یا صحافت سے تعلق رکھنے والے، تو اس ضمن میں ہم اپنے سال سے تمغہ شجاعت بخاری ایک مسلسل یہاں پر ہر سال اس کے لیے ہم تقریب کا انعقاد کرتے رہیں گے. اس کا مشن جو تھا وہ اپنے ہی نوجوانوں کے، ریاست جموں کشمیر کے نوجوانوں کو پہلے ملکی سطح پر پھر عالمی سطح پر تمام شعبوں میں نمایاں کارکردگی دکھانے کی غرض سے اس کا یہ مشن تھا کہ یہاں پر ایک امن امان کا ماحول قائم کیا جائے تاکہ میرا نوجوان، میری جموں کشمیر کا نوجوان بھی دیگر ریاستوں کے نوجوانوں کی طرح تمام شعبوں میں اپنا نمایاں کارکردگی دکھانے کے قابل ہو جائے. اس کے علاوہ انہوں نے عالمی سطح پر بھی ہمیشہ جموں کشمیر کی ہر بات کی نمائندگی کی ہے، اور اپنے قلم کے ذریعے، کیونکہ وہ مفکر بھی رہا ہے، اور انہوں نے ہمیشہ ریاستی سطح پر، ملکی سطح پر اور عالمی سطح پر جموں کشمیر کی ہر ایک چیز کو بہتر طریقے سے اپنے قلم کے ذریعے پہنچانے کی کوشش کی ہے. اور آخر
वक्त तक वो इसी काम में मशगूल रहे। बहुत दिनों के बाद आज इंतहाई मसरत मुझे महसूस हो रही है, खुशी महसूस हो रही है कि जो काम इलाके क्रीरी से वाबस्ता हमारे बड़े जर्नलिस्ट्स को बहुत पहले करना चाहिए था, वो उन्होंने इंतहाई आज अंजाम दिया है। देर आयत दुरुस्त आयत, इस काम को करने में लगभग 6 साल लग गए। मेरी ये ख्वाहिश थी पहले से कि इस तरह के प्रोग्राम यहाँ इलाके क्रीरी में, उसका एक पस मंजर है ना, वो मैं आपके सामने शेयर करूँगा। जो इरादे आपने अभी यहाँ जाहिर किए शुजाअत का दिन मनाने के हवाले से, मुझे लगता है कि वहाँ उसका एक कनेक्ट है। शुजाअत टू माय अंडरस्टैंडिंग वाज ए कश्मीर लवर, उसकी महबूबा कश्मीर थी, वो फना थे कश्मीर जिसे आप कहेंगे, से मोहब्बत करने वाला इंसान। एट द सेम टाइम से ये उसकी ये फीलिंग थी कि पे इस प्रेशियस मसला लफ्ज़ का इस्तेमाल या कोई बोमर को low power, please charge. so that Low power, please charge. ये मसला पता नहीं इम्कानात में जैसे मसरूद आसा कर जनरली Low power, please charge. ये बूझ है वो कश्मीर ट्रेजेडी थी, अलमिया। और धीरे धीरे मैंने ये समझना शुरू किया कि उसकी जो इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है इस पूरे अलमिये की, उसे लगता है कि इस मसले का हल, विद वेरी ड्यू रेस्पेक्ट टू माय ब्रदर बशार साहब, इस मसले का हल सियासी नहीं है, इस मसले का हल कश्मीरी हो, इस कश्मीर अलमिया तमिक हल तहजीबी सकाफती इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स। This is the basic difference. Used to Sayyid Shujat Bukhari marhum Shahid is that पूरे crowd इंशाल्लाह कारण शमीयत से इसी मामले से और उस ट्रेजेडी को, उस अलमिये को समझते समझते और उसके हल की तरफ, जिस तरह एक ड्रामा निगार उसको अपने क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ाता है किसी ट्रेजेडी, वो खुद एक ट्रेजेडी बन गया। ये बशार साहब की भाई है, क्योंकि इनको तो मैं एज एमएलसी पॉलिटिक्स जानते थे, रफीक साहब के घर में बैठे थे, मुझे अभी भी याद है। तो उनकी वो बातें सुनकर उन्होंने जो मुझे वहां पे 2-3 बातें मुझे कही, तो मुझे ऐसा लगा कि इल्म का समंदर इनमें समा हुआ। मुझे वाकई ऐसा लगा कि मैं एक ऐसे बड़े इंटेलेक्चुअल के पास बैठा हूं कि शायद से इस गांव में नेरा के इनकी तरबियत का हुई है, इनसे तालीम का अच्छी गमस में बड़ा मुतासिर हुआ। लेकिन अल्लाह का करना था, अल्लाह ताला से जिस करना कहीं थी, उसका फैसला जो होता है उसको कोई टाल नहीं सकता है। शायद इस इलाके की, इस वादी कश्मीर की, इस पूरे जो जम्मू कश्मीर रियासत थी, हम सब लोगों की बदकिस्मती की कि हमारे बिरजू मिजाज शुजात साहब नहीं है। ये जो आज का प्रोग्राम है, हमने एक छोटी कोशिश की। हम बैठे थे 2-3 दिन पहले, मेरे ये भाई लोग मीडिया से, मीडिया फैटर्निटी जो है, तो हमने ये एक मशवरा किया कि क्यों ना हम अपने ओर से, अमीन साहब हर साल मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूं, मुश्ताक साहब को हर साल मैं इनको देखता हूं कि एवरी ईयर ये यहाँ पे आके रमज़ान के महीने में। अहमियत की एक बहुत बड़ी वजह जो है वो सैयद शुजात बुखारी की ज़ात और उनकी शख्सियत रही है, और आज उनकी 6ठी बरसी है।
यहाँ की जो हमारे नौजवान जर्नलिस्ट हैं उन्होंने एक नई एसोसिएशन मतलब एक शुजात साहब को डेडिकेट करके बनाई है, सईद शुजात बुखारी मेमोरियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन, और उसके अहतमाम से ये आज उन्होंने शुजात साहब की इस 6ठी बरसी पे इस तकरीब का अहतमाम किया, जिसमें शुजात साहब के कारनामों को याद किया गया, उनके साथ जो हमारी ज़ाती वाबस्तगियाँ रही हैं, मोहब्बतें रही हैं, शफ़क़तें रही हैं, और जिस तरह से उन्होंने कश्मीर की मोहब्बत के लिए अपना सब कुछ निछावर किया है, उसको याद किया गया। और मुझे लगता है कि पूरे कश्मीर में या बल्कि पूरी दुनिया में शुजात साहब को याद किया जाता है, लेकिन आज क्रीरी के नौजवानों ने वो हक़ अदा किया जिसका 6 साल से इंतज़ार था। अपने एक उस्ताद में कहूँगा उनको, सईद शुजात बुखारी साहब, जिन्होंने सहाफ़त के मैदान में कारहाई नुमाया अंजाम दिए और आज से 6 साल पहले हमसे बिछड़ गए। तो आज उनकी याद में यहाँ पर क्रीरी में इन्होंने एक मजलिस का इनेकाद किया था। बहुत अच्छा लगा। शुजात साहब की खिदमत को खराज तहसीन खराज अक़ीदत अदा किया गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी हमारे जो इलाके के यंग जर्नलिस्ट हैं, हमारे जो सहाफ़ी हजरात हैं, वो इस तरह के प्रोग्राम करेंगे और साथ साथ अपने जो इस पेशे में आने वाले अपने नए लोगों की भी हौसला अफजाई करते रहेंगे। तो शुजात साहब का एक बहुत मुकाम है सहाफ़त में, समाज में, सोसाइटी में, खुसूसन वो इसी इलाके से वाबस्ता थे और इस इलाके के साथ भी उनकी वाबस्तगी के हवाले से भी ये प्रोग्राम इंतहाई अहम नौइयत का है। मैं इसके ऑर्गेनाइज़र्स को जिन्होंने भी ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था, चाहे टीचर्स फोरम हो या क्रीरी जर्नलिस्ट एसोसिएशन है, तो इन सब को मैं अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने बहुत देर से ही सही लेकिन ये एक कामयाब पहल की है और ये उम्मीद रखूँगा कि आइंदा भी इस तरह के प्रोग्राम होते रहेंगे। के हवाले से जब उसकी शहीद कर दिया गया है, उसके बाद मुझे ऐसा लगा था, काफ़ी अरसे तक मुझे ये महसूस होता रहा कि सहाफ़त की दुनिया कश्मीर में जो है वो महरूम हो चुकी है एक उस्ताद से। और आज उसकी याद में जो यहाँ पर हमारे सहाफ़ी बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली हमारी यंग जनरेशन है, उन्होंने यहाँ पर आज उसके याद में यहाँ पर प्रोग्राम का इनेकाद किया है। तो मैं यही कहूँगा कि हर जगह पर उसकी याद में ऐसे प्रोग्रामों का इनेकाद होना चाहिए था, क्योंकि मेरे लिए वो मशाल राह था और मेरे लिए सबसे बड़ा नुकसान हुआ उस वक़्त जब उसको असैसिनेट किया गया। तो मैं यही कहूँगा कि शुजात बुखारी साहब मेरा क्लास फेलो रहा है सोपोर में, और उसके बाद उसने सहाफ़त की दुनिया में जो नाम कमाया है और सहाफ़त और अदब के साथ साथ वो मुख्तलिफ, वो मुफक्किर था, मुफस्सिर था और वो मुसन्निफ़ भी था, कलमकार था, मारूफ कलमकार भी था और मारूफ सहाफ़ी भी था, और उसकी कंट्रीब्यूशन को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। आज उसकी याद में मेरे ख्याल में हर घर में, खुसूसन शुमाली कश्मीर के हर घर में उसकी याद में उसकी वफ़ात के, उसकी शहादत के दिन को बेहतरीन तरीके से इसी तरह मनक़द करना चाहे और उसके साले सवाब पहुँचाना चाहे। गुज़र साहब, पहले सहाफ़त में ये कि मैं इसी की बात करूँ, शुजात साहब की बात करूँ, तो उसका एक मिशन रहा है सहाफ़त के हवाले से। उस सहाफ़त के ज़रिए वो कश्मीरी कौम की पहचान करवाना चाहते थे। वो चाहते थे कि मेरा नौजवान पहले मुल्क की सतह पर फिर आलमी सतह पर बेहतरीन तरीके से वो हर फील्ड में बेहतरीन तरीके से मुकाबला कर सके। इसके लिए उसका एक मकसद था कि यहाँ पर अमन अमान सुकून पैदा हो जाए ताकि मेरा नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान आगे बढ़ सके। तो उसका विजन वहाँ तक अभी तक मैंने कभी किसी को नहीं देखा वहाँ पहुँचते हुए उस विजन तक। तो मैं ये कहूँगा कि उस सहाफ़त और आज की सहाफ़त में आसमान और ज़मीन की फ़र्क है। आज की सहाफ़त सिर्फ जो हम कहेंगे सिर्फ पैसों के लिए की जाती है, लेकिन मिशन इसमें कोई किसी जगह दिखाई नहीं देता है आज की सहाफ़त में। लेकिन तब जब सहाफ़त की जाती थी, जब शुजात बुखारी की सरबराही में जो जर्नलिस्ट, बडिंग जो जर्नलिस्ट थे वो उभर रहे थे, वो आगे बढ़ रहे थे। और मैं ये कहूँगा कि शुजात साहब की वजह से ही यहाँ पर सहाफ़त का नाम उस वक्त में भी और आज की डेट में भी अगर कहीं जगह पर चल रहा है, सही तरीके से चल रहा है, तो उसी की वजह से चल रहा है, क्योंकि उसने सहाफ़त को एक फरीज़ा समझा है, एक इबादत समझी है। और उसी चीज़ को लेकर मैं ये कहूँगा कि आज की सहाफ़त में सिर्फ हम ये चाहते हैं कि हम किस तरह अपने लिए पैसा बना सकें। गुज़र साहब, आपने यही कहा कि आज की सहाफ़त में और पहले में बहुत आसमान ज़मीन का फ़र्क है। आज स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें, मास कॉम करके उसके बाद भी जो है वो इस फील्ड में उतरना नहीं चाहते हैं, तो क्या कुछ करने की ज़रूरत है जिससे वो जो है अपना फ्यूचर इसी में देखें?
देखिए कि सहाफत में फ्यूचर इसलिए मखदूश दिखाई दे रहा है क्योंकि जो जहनियत है या हम अपने दिल में और जहनियत में जो हम देखते हैं कि आसमान और ज़मीन का फ़र्क आ चुका है। हम कहते हैं कि जो बडिंग जो जर्नलिस्ट है जो कॉलेजों से निकलते हैं मास कॉम करके या जर्नलिज्म करके निकलते हैं तो वो दर पर दर के ठोकरें खाते हैं। अगर उनको फील्ड मिलता, वैसा फील्ड मिलता, करप्ट फील्ड नहीं मिलता, तो बेहतर तरीके से वो भी शायद जिस तरह डॉक्टर गुरु साहब यहाँ पर शहीद हुए थे उसके बाद मैं ये कहूँगा कि यतीम तो नहीं हुआ लेकिन गुरु कोई पैदा नहीं हुआ, डॉक्टर गुरु पैदा नहीं हुआ। इसी तरह शुजात साहब की शहादत के बाद कोई शुजात साहब पैदा नहीं हो गया क्योंकि उसका मिशन यही था, शुजात साहब का मकसद यही था कि सहाफत के ज़रिए हम अपने कौम की और अपने मुल्क की बेहतर तरीके से खदमत अंजाम दे सकें और अपने जो बडिंग जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक मशाल राह की तरह वो आगे ले जाना चाहता था। लेकिन बदनसीबी ये है कि यहाँ पर हर एरे गेरे ने अब मोबाइल उठाया है, लोगो उठाया है। हर एक इंसान ने वो ये चाहता है कि मैं रातों रात अमीर भी बन जाऊं और मशहूर भी हो जाऊं। तो इस वजह से सहाफत और सहाफत को समझने वाले जो है इसको सहाफत नहीं मानते, जो बेहतर तरीके से सहाफत को समझते हैं। सहाफत का मकसद ही ये है, सहीफा मतलब कलमकार, एक किताबचा। तो जब ये सहाफत का मतलब भी नहीं मालूम था तो फिर भी उठाया उनने, हाथ में मोबाइल उठाए या लोगोज उठाते हैं तो बयान देते हैं, मतलब न्यूज़ बनाते हैं या करंट न्यूज़ बनाते हैं। इस तरह मैं यही कहूँगा कि आज के बडिंग जो जर्नलिस्ट है उनको मशाल राह बनाना चाहिए, अपने जो आइडियल बनाना चाहिए किसको, शुजात बुखारी साहब को, और उसकी राह पर चलना चाहिए, उसी के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए।